good morning, dear students. How are you? I am very fine, and I hope you are also very fine. And today we have to live at Study 24/7, okay, YouTube platform, and you know well this platform for English language and literature, okay. So today we are going to discuss about class 12 Vista book second chapter, The Tiger King by Kalki, okay. And this class will be going for the bilingual way for the state and the all CBSE students. So if you have any problem, if you have any doubt, I have to prepare our telegram discussion group. You can join there. I will be pin up link in the कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, वहाँ पे भी हो जाएगा. सो आराम से आप लोग जाइए, वहाँ से ज्वाइन करें. और व्हाट यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहाँ लिखिए. आपको हम जरूर उस पर वीडियोज बना के आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जितना कि मैं बेटर कर सकता हूँ आपके लिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को. द टाइगर किंग बाय कल्कि. पहली बार वीडियो पे हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है. अबाउट द ऑथर सबसे पहले पढ़ते हैं. कल्कि हुज रियल नेम वाज रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, okay, September 9 to 1899, December 5 to 1954, was a notable Tamil writer, journalist, poet, critic and activist in the freedom movement. यानी कि आज़ादी के दिनों के आज़ादी के समय में उसमें फ्रीडम मूवमेंट में भी रहे हैं. His literary output consisted of more than 120 short story, wow, 10 novels, 10 novellettes, 5 novels, 3 historical romance, editorials, political writing and numerous film and music reviews. In recognition of the contribution, Kalki was honored with the Sangeeta Kala Sikshmi Award, Sikshmi Award by Indian Fine Arts Society in 1953. During the सेंचुरी सेलिब्रेशन अ पोस्टेज स्टैम्प वाज इशूड इन हिज ऑनर. उनके सम्मान में एक पोस्ट स्टैम्प को भी इशू किया गया था. द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आल्सो नेशनलाइज्ड हिज वर्क, ठीक है. आ जाइए इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. कल्कि ट्रांसपोर्ट हिज रीडर टू एन एरा डोमिनेटेड बाय ऑटोक्रेटिक एंड द आइडियोसिंक्रेटिक मोनार्च. These regal figures were subjected to the dominion of British, thereby instilling a deep-seated fear in them. In his endeavor to imbue the narrative with an aura of mystique, Kalki definitely incorporates supernatural element. The imperious king vehemently rejected the astrologer prophecy concerning his damage only for his eventual death by the hand of the 100 wooden tiger to the subsistence it, okay. This story satirize क्या है, satire है the arrogance of those in power. Often rulers do not care about saving the people or working for the public's well-being. Instead they waste their time on foolish pursuit. Even those close of the powerful figure are more interested in using their proximity for their own benefit. This story is about the fleeting nature of life and power, emphasizing the saying many things can go wrong before a goal is achieved, okay. Summary of this chapter. The story commences by introducing its central character, the Maharaja of Pratimanpuram, often simply known as the Tiger King. The narrator set out to explain how this name came to be, emphasizing that the reader can never meet the Tiger King since he has already passed away. The story begins with the prophecy made at the time of Tiger King's birth. कब की बात है? टाइगर किंग के बर्थ से. Which foretold that would be the great warrior but would eventually meet his demise. This prophecy was connected to the star under which he was born, signifying his death. Remarkably, as a 10-day-old infant, the Tiger King inquired about the manner of his death, displaying surprising wisdom. He was born under the star associated with the tiger, indicating that his end would come to hand of a
tiger. However, instead to fear, the infant responded with courage and declared that tigers should be right. Though this may be rumor, the circumstances of its death suggest it could be true. Next आ जाइए. In the second section, the narrative delves into the Tiger King growth. Nothing is exposure to English influenced in the upbringing, which include drinking English milk, having an English tutor, watching English film, and being cared of an English nanny. Nevertheless, the prophecy remains in the mind of kingdom's residents. The Maharaja did not view self-defense against tiger as wrong, leading his embark on tiger hunt. An astrologer warned him that it was the 100th tiger he should be cautioned about, even pleading to change his life and if that happened. In the third part of the story, tiger hunting was restricted for everyone except the Maharaja, who made it top priority. He even engaged in hand-to-hand combat with tiger and successfully defeated them. At one point, an English officer requested permission to hunt tiger in Pratibandhapuram, which the Maharaja formally denied. This refusal endangered his throne, but he managed to resolve the situation by sending extravagant gift to 50 expensive rings, the Englishman and his wife. An unexpected turn of event, the wife accepted all 50 rings, casting the Maharaja significant sum but safeguarding his kingdom. वो अपनी kingdom को बचा लिया. The fourth section की अगर बात करें, reveal the Tiger King has hunted and killed 70 tiger over a decade, depicting the local tiger population. To continue his hunting pursuit, he decided to marry a girl from an area with a higher tiger population. He subsequently kills tiger, during which to her father-in-law, amazing 99 tiger skin in his place. However, he became consumed by the desire to kill the last tiger, causing turmoil in the kingdom. The Diwan out necessity captured a tiger and present it to the Maharaja, who kills it. Just a minute, battery is going to dead. Okay, the Diwan हो गया. After the Maharaja level, the hunter discovered that the tiger survived the gunshot and only fainted from shock. Fearing the loss of their job, they shoot the tiger in the foot and bury the secretly in the town, erecting the tomb in its honor. Okay. 3 days later, 3 दिनों के बाद, the Maharaja is planning for the son's 3rd birthday and purchase a wooden tiger doll for him. The doll is very poor quality, splinter injured, and Maharaja hand as we play with his son. The injury lead to severe infection and eventually result the Maharaja death. This is the twisted way fulfill the prophecy of the 100 tiger revenge. Okay, अब आगे आइए. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. यू विल बी सीट एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं. व्हाट मिराकुलस इवेंट ऑकर्ड व्हेन द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर स्पोक. क्या हुआ? तो एन एस्ट्रोनाइसिंग फ्रेज है. क्या? एन एस्ट्रोनाइसिंग फ्रेज है. फाइंड ए सिनोनिम्स ऑफ इनिशिएटेड इन द गिवन पैसेज. नीचे जो पैसेज दिया गया था अभी आपने देखा, तो इसका मतलब होता है अटर्ड. तो इस तरह से आप पैसे एक्सट्रैक्ट को देखेंगे. स्ट्रक्ट बेस पे क्वेश्चन है. सेकंड यहाँ पे दिए गया है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ थर्ड है. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर इनहैबिटिंग प्रतिबंधीपुरम. ठीक है, फिर उसके बाद से फोर्थ यहाँ पे है. देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि यू मस्ट बी स्टडी ऑल PYQs, ऑल क्वेश्चन आंसर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए आपको पढ़ना है. बहुत सारी चीज़ें जो समरी में नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें जो आपने NCERT पढ़ा लेकिन उस पर फोकस नहीं किया, तो क्वेश्चन बनते कैसे उस NCERT से, क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर से निकलते हैं, सब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन सीरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ. दैट्स वाई यू पॉज द वीडियो को पॉज करिए और देखिए. अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. हाउ डज द टाइटल द टाइगर किंग रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी. कैसे करता है?
तो कहीं ये प्रॉपर नहीं दिया, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे मिलेगा। द टाइटल रिफ्लेक्ट द स्टोरीज फोकस ऑन द महाराजा अविशन द टाइगर हंटिंग एंड इट्स क्वेस्ट फॉर पावर। इट हाईलाइट द आयरनी ऑफ ए किंग known for hunting tiger when he to become a victim of his own ambition। ठीक है, तो इस तरह से टाइगर किंग क्रिटिसाइज द बिहेवियर ऑफ दोज इन पावर। ठीक है, कैसे उन्होंने किया। व्हाट इज द ओपिनियन टाइगर किंग कैरेक्टर एंड व्हाट इज द रिवील अबाउट द फ्लॉ ऑफ दिस। ठीक है, अगे देखो, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिटर्मिनेशन टू किल 100 टाइगर लीड टू फॉर हिज डाउनफॉल। हाउ डज द स्टोरी एड्रेस द थीम ऑफ डेस्टिनी एंड द अनएक्सपेक्टेड इन द टाइगर किंग फेट। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द टाइगर किंग कैरेक्टर रिसोनेट विद द मॉडर्न पॉलिटिकल फिगर एंड व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द रोल ऑफ सुपरस्टिशंस इन द स्टोरी गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वार्निंग। ठीक है, हाउ डज द टाइगर किंग ऑब्सेशन विद टाइगर हंटिंग रिफ्लेक्ट द एब्यूज ऑफ पावर, कैसे वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द स्टोरीज ह्यूमर ऑफ सटायर अफेक्ट योर परसेप्शन ऑफ द टाइगर किंग कैरेक्टर। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। सो कोई भी आपको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, हर क्वेश्चन को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर। देख लीजिए क्या है। व्हाट डज द स्टोरी कन्वे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड फियर इन कॉन्टेस्ट टू द टाइगर किंग्स रूल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। द किंग वॉज कैलेस ऑफ ए रूलर एंड बिहेव whimsically, thus the people in the kingdom suffered while he fulfilled his desire of killing 100 tigers. Do you find leaders of politicians in the world today being indifferent to the needs of the people and behaving in the same way? Comment with your land example के साथ आपको। तो यहाँ पे देखिए उसके पूरे आंसर्स यहाँ पे हैं आपके, आराम से आप इन आंसर्स को पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको करके आप लोग सेव कर लीजिए। द महाराजा जस्टिफाइज इज एक्शन बेस्ड ऑन द मैक्सिम यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, सो देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। डू यू थिंक इट इज राइट टू जस्टिफाई आवर एक्शन इन दिस वे? इलेबोरेट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से आप लोग पढ़िए वीडियो को पॉज करके। इमेजिन यू आर द ऑर्डिनेंट environmentalist who is involved in the Save the Tiger campaign. You have been asked to deliver a speech in a similar related to your campaign and the need for the youth to be involved in such campaign. Draft your speech, तो आपको एक स्पीच मोड में लिखना है। तो देखिए, ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow advocates for a cause that is not just urgent but a moral imperative, the preservation of our majestic tigers. ठीक है, उसके बाद हम लोग टुडे स्टैंड बिफोर यू टू आर्डेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, ए प्राउड सपोर्टर ऑफ द सेव द टाइगर कैंपेन। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। देखिए पूरा इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे लॉन्ग आंसर का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। ओके, डू यू थिंक एन ऑथर हु includes several instances of satire in a story faces the risk of being too cynical? Explain in reference with the chapter The Tiger King। इसको आप लोग आराम से देखिएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिसानी दोशी। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। कम से कम आप ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स का टाइम दीजिए अपने इंग्लिश को, एवरी डे दीजिए। मैं श्योर करता हूँ नो वन कैन स्टॉप यू। 95 प्लस लाने से आपको कोई भी रोकने वाला इंग्लिश में नहीं है। 96, 97, 98, 100 तक भी जा सकते हैं अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हर रोज़ पढ़िए, एक चैप्टर पढ़िए। एक चैप्टर पहले प्रोसीजर क्या होना चाहिए आपका, थोड़ा सा मैं आप लोग को कहिए तो बता दूंगा कि हाउ टू यूल बी स्टडी प्लान भी मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या पढ़िए, सबसे पहले आप अपनी NCERT की बुक पढ़िए। NCERT की सबसे पहले बुक पढ़िए। NCERT बुक पढ़ने के बाद से आप क्या करिए कि NCERT के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो NCERT के क्वेश्चन आंसर उसको एक बार देखिए। उसको मल्टीपल यानी कि दो या तीन बार पढ़ डालिए। उसके बाद हमारी इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद से आप क्या करिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को क्या करिए
कि आराम से मल्टीपल 2 या 3 बार पढ़ डालिए, और उसके बाद से आपको एक काम और करना है साथ में, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड PYQ, और बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आप स्टूडेंट है 2026 के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करिए 2020 थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, आप PYQ पढ़िए। कौन सा PYQ आप पढ़िए? केवल 2022 से लेकर के 2025 तक जो भी PYQ है उस चैप्टर्स पढ़िए। तो इस सब चीज़ों को आपको पढ़ने में लगा कितना? मान लीजिए NCERT चैप्टर को आपको पढ़ने में लग गया, NCERT चैप्टर को आपको पढ़ने में लगा 15 मिनट, उसके क्वेश्चन आंसर को देखने में आपको लगा 10 मिनट, ठीक है। इस वीडियो को आपको देखने में लगा, मान लीजिए कि आपको 15 मिनट में कह देता हूँ, ठीक है। अब PYQ को पढ़ने में आपको लगा 10 मिनट। ये आपको हर रोज़ आपका अपना समय होना ही चाहिए, मतलब लगभग 40 से 50 मिनट जा रहा है अप्रॉक्सीमेट बड़े चैप्टर के लिए। छोटे चैप्टर में और भी आपका काम होगा, दैट्स वाई अगर एवरेज आप टाइम निकालेंगे तो 30 मिनट 5 मिनट एवरी डे अगर आप अपने देते हैं इंग्लिश को 35 मिनट, तो श्योर नो मैटर विल बी गेट गुड, ओके। लेकिन ये पूरे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जरूर पढ़िएगा, दिस इज माई सजेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर रियली आप मुझे लव करते हैं तो फॉरगेट मत करिएगा, भूलना क्या, #English by Amarnath। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।